اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے اچھے تعلقات، مذاکرات اور ملاقاتیں، جبکہ آصف زرداری آڑے آ گئے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام اور تسلیاں دیں۔ مریم نواز شریف کے فرح بی بی کے حوالے سے عمران خان پر طنزیہ وار، کس وجہ سے انہوں نے کیا کہا۔ حکومت نے نئی مردم شماری کے نتائج تک انتخابات نہ کرانے پر غور شروع کر دیا۔ پاکستان میں 48 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی، آخر کیا وجہ ہوئی کہ ملک کے اندر سے بجلی غائب ہو گئی، اور اس کا ملکی معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کون سی چیز ختم ہے جس کو خریدنے کے لیے پیسے تک نہیں، اور کتنا عرصہ بجلی کی اس طرح کی بندش کا پاکستان کی عوام کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کو منانے کی کوشش بالکل ناکام ہو گئی، اور اب آئی ایم ایف کی بدترین شرائط جو ہیں وہ پاکستان کو ماننا پڑیں گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ روز لندن میں مریم نواز شریف صاحبہ سے صحافیوں نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب محسن نقوی صاحب کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جانے کے اوپر ناخوش ہیں، احتجاج کریں گے اور اس مقصد کے لیے وہ عدالت بھی چلے گئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ خان کو پوچھیں کہ ہم کیوں نہ فرح گوگی کو جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیں، کیونکہ ان کا بڑا اچھا تجربہ ہے حکومتیں چلانے کا۔ انہوں نے طنزیہ وار کیا اور عمران خان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ ہی کو لگا دیتے ہیں۔ جس ملک کے اندر آئین ہو اس کے اوپر عمل نہ ہو، جس ملک میں قانون ہو وہاں اس کی عملداری نہ ہو، جہاں پہ آپ کو پرویز الہی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے نہیں ویسے ہوگا، جب اختیار سے آپ بے اختیارے ہو جائیں تو پھر آپ کی بات کون سنے گا۔ جس ملک کے اندر ہر وہ کام ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کی جان ماضی میں لی گئی، حال میں لی گئی، لینے کی کوشش کی گئی، تو وہاں پہ کون سا قانون، کون سا آئین جس کے تحت آپ کی کہیں پہ بات منوا سکیں، یا سیاست میں رواداری یا اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں۔ خان صاحب کے پاس جب چیز تھی تو انہوں نے وہ اختیار کسی اور کو دے دیا اسمبلیاں تعلیل کر کے۔ اب عدالتوں میں جانا چاہتے ہیں، اب الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اب الیکشن چاہتے ہیں، مگر نگران وزیر اعلیٰ ہی ان کی مرضی کے برخلاف لگا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ کا جو چند ممالک کے اندر الیکشن سے پہلے طریقہ کار سیٹ کیا گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ حکومت وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر الیکشن نہیں کراتے، بیوروکریسی کے ذریعے چیزیں کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، تو لہٰذا نگران سیٹ اپ لایا جائے الیکشن سے 3 ماہ پہلے، جو لوگ فیئر ہوں، غیر جانبدار ہوں، اور وہ ملک کے اندر الیکشن کروائیں، جس کے نتیجے میں عوام کو صحیح منوں میں، جو عوام طاقت کا سرچشمہ ہیں، وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، جس کے نتیجے میں جس کو عوام ووٹ دیں وہ برسر اقتدار آ جائے اور پھر ملکی معاملات جو ہیں ان کو آگے چلائے۔ مگر پاکستان جیسے ملک کے اندر ایسی خواہشیں کی جا سکتی ہیں، ایسا سوچا جا سکتا ہے، لیکن ایسی باتوں کے اوپر عمل ہونا یا کروانا ایک نہایت ہی مشکل عمل ہے، چونکہ یہاں پہ سرعام کہا جاتا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں ایسے کہنے والے، جبکہ ہم اصل میں حکمران ہیں، ہم نے حکمرانی کی، ہم جیسا چاہیں گے، اختیار ہمارے پاس ہے تو ویسا ہی ہوگا۔ اس کی اور ایک بڑی مثال کہ جب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالات اچھے ہوئے تو کیپٹن صفدر صاحب نے تنقید شروع کر دی باجوہ صاحب کے اوپر۔ رانا صاحب بھی بولے اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ اگر ادھر دوستی کی پینگیں بڑھائیں گے تو ہم آپ کے مخالف ضرور جائیں گے۔ وہ پیغامات دینے تھے، دے دیے گئے۔ نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، نئے آرمی چیف ہیں، اور جب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی تو اس میں آصف زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ آڑے آگے۔ ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات بہتری کی جانب گامزن تھے اور ہیں بھی۔ ایسے میں آصف زرداری بیچ میں آگے ہوں، اور آصف زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی ہے اور انہیں اس بات کا یہ واضح یقین دلایا ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے دل و جان لگا کے محنت کریں گے، اور فی الحال اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ملاقاتیں اور معاملات کو آگے نہ بڑھائے اور ان چیزوں کو روک دیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ نے آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے وعدے، ارادے، نیتیں اور جو پیشکش کی گئی اس کے اوپر زرداری صاحب کو فی الوقت جواب نہیں دیا، صرف ان کو سنا،
अब देखना ये होगा कि क्या ये प्लान दुरुस्त है, जिसको मैं पिछले 4 माह से कह रहा था कि आइंदा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना ही नून लीग और ना कोई और, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये खुद भी ख्वाहिश है और बाज़ इदारे जो हैं वो चाहते हैं कि अब बारी जो है वो आसिफ जरदारी साहब की है, और आसिफ जरदारी खुद भी अपने बेटे बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला लगने से जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, वहीं पर ये निगरान वज़ीर आला जो हैं ये नून लीग के नहीं हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के भी नहीं हैं, ये खासकर आसिफ जरदारी साहब के हैं। और आसिफ जरदारी साहब जहां पे इमरान खान को नुकसान पहुंचाएंगे, वहीं पे मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाते हुए सियासी तौर पर अपने मफादात के असूल के लिए इनको इस्तेमाल में लाएंगे। और ये निगरान वज़ीर आला पंजाब में भी आसिफ जरदारी साहब की कामयाबी और बेहतरी के लिए सियासी तौर के ऊपर काम करेंगे। एक तरफ 2 असेंबलियों के इंतखाबात, दूसरी जानिब 35 इस्तीफे मंजूर हुए, आज मजीद हो गए। 100 के करीब जो लोग हैं मेंबर नेशनल असेंबली एक जमात के, जो वापस जाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें, उनके इस्तीफे मंजूर हो गए और वो असेंबली से बाहर हो गए। आखिर जो हुकूमत इनको असेंबली में वापस लाना चाहती थी, मिन्नतें तरले करना चाहती थी, ये वापस आना नहीं चाहते थे। आखिर क्यों ये असेंबली के अंदर उनको दाखिल नहीं होने देते, और आखिर क्यों अपनी ही बात से इनकारी होने वाले इमरान खान अब पार्लियामेंट में वापस जाना चाहते हैं? उसकी वजह कि ये वापस इसलिए जाना चाहते हैं कि हम अपना अपोजिशन लीडर बनाएं। हुकूमत जो है वो इसलिए इनको वापस नहीं आने दे रही कि इनकी नुमाइंदगी वहाँ पे ना हो और ये अपोजिशन लीडर इनका ना हो। चूँकि जब सदर पाकिस्तान वोट लेने का इत्मीनान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे, तो वहाँ इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की मौजूदगी उनके लिए ख़तरा है और वोट इत्मीनान का लेने में दुश्वारियाँ हो सकती हैं। यही वजह है कि इनके इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं, बजाय इसके कि उनको पार्लियामेंट के अंदर वापस आने दिया जाए। तो ये फ़िक्र है, ये खौफ है, ये ख़तरा है, जिसके बाइस अपनी ही बातों से सबको इनराफ करना पड़ा और इस तरफ वो चल पड़े। पाकिस्तान में 48 घंटे से बिजली गायब है और अभी 72 घंटे तक जो है वो आपके मुल्क में मुकम्मल तौर के ऊपर बिजली की बहाली नहीं होगी। अगर ये बहाली हो भी गई तो उसके बावजूद बड़ी हद तक लोड शेडिंग रहेगी। पड़ोसी मुल्क भारत हंसा हमारे इस इकदाम के ऊपर, चूंकि पिछले 3 सालों से हर साल हमारे मुल्क के अंदर ऐसा हो चुका है और आज भी वैसा ही हुआ। एक एटमी कुव्वत रखने वाला पाकिस्तान, जिसके अंदर पूरे मुल्क से बिजली गायब हो जाए, एक बड़ा सवालिया निशान है। लोगों ने लालटेनें निकालनी, उन्होंने मोमबत्तियां जलानी शुरू कर दी और कहा हम पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। इस कौम को और कोई फिक्र नहीं है, कभी नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये है कि हमारा मोबाइल चार्ज क्यों नहीं है, हमने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ देख क्यों नहीं सके। इनको कोई फिक्र नहीं, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, फलां चीज़ नहीं होगी, इसके ऊपर एहतजाज नहीं करेंगे। वजह क्या बनी? हम एक गरीब मुल्क थे, आज भी हैं, और इन हालात का शिकार हैं कि ईंधन जिसके ज़रिए बिजली को चलाया जाता है वो वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं था, नया ख़रीदा नहीं गया, जिसकी कमी के बायस मुल्क के अंदर से बिजली गायब हो गई। अब इस बात की इंक्वायरी जो है वो बाज़रिया ट्वीट वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की है और कहा है कि हम इंक्वायरी करवाएंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म साहब आप इंक्वायरी आपसे होनी चाहिए। आप क्या किसी से इंक्वायरी करवाएंगे? आपके पास तो ईंधन ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं थे इदारे के पास, जिसके बायस ये नौबत आन पहुंची और मुल्क अंधेरों में डूब गया। और अब भी बिजली जो है वो अगले मज़ीद 24 घंटे तक पूरे मुल्क के अंदर बहाल नहीं होगी। अभी 48 घंटे आज होंगे, फिर एक और दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आपको बिजली मिलेगी और उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर बरतानिया के अंदर बिजली जो है वो 5 मिनट के लिए चली जाए, यहाँ 10 मिनट के लिए ट्रैफिक जो है वो मोटरवे के ऊपर बिल्कुल जाम हो जाए, तो इस मुल्क को मिलियंस ऑफ पाउंड्स का पर मिनट के हिसाब से नुकसान होता है। आपके पाकिस्तान के मुल्क में 72 घंटे तक, यानी कि 3 दिनों तक बिजली नहीं होगी, कोई निज़ाम नहीं चलेगा। आप इमेजिन कीजिए कि इस मुल्क को सिर्फ बिजली के जाने से जो पहले से खसारे में है उसको कितनी बड़ी हद तक नुकसान हुआ होगा। चूँकि हम इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते,
जिस वजह से हमें अंदाज़ा ही कोई नहीं है कि कितना बड़ा ये नुकसान का बायस हुआ। सिर्फ आपको अंधेरा नहीं मिला, इसका जो बोझ पड़ेगा वो आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। और IMF को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, आपके ऊपर एक और महंगाई का बम गिराया जाएगा। हमें भी हैरत होती है कि इस गरीब के ऊपर मज़ीद गुर्बत के साए मंडलाएंगे, क्यों ऐसे हो रहा है और उसकी वजूहात क्या है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF को मनाने की कोशिश में नाकाम हो चुके। वज़ीर आज़म से मदद तलब कर ली इसहाक डार कतर से ऑनलाइन, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी IMF से वर्चुअल बातचीत में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म IMF से मुल्क की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि FBR ने मिनी बजट की तैयारी मुकम्मल कर ली है। IMF की मर्जी के मुताबिक टैक्स ऑर्डिनेंस के खदोहाल को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF पाकिस्तान को मिशन पाकिस्तान भेजने की दरख्वास्त की जाएगी और मुज़ाकरात के बाद IMF वज़ारत ख़जाना को आगाह करेगा। जब ये मुज़ाकरात शुरू होंगे फिर से, और अब चूँकि इसहाक डार साहब IMF को मनाने की कोशिश कर रहे थे, हमें पेट्रोल और डीज़ल और बाकी जो मसनूआत हैं, तेल जितने भी, उनको महंगा करने का ना कहें, बिलखसूस बिजली को महंगा करने का ना कहा जाए। जब वो शराइत ना मनवा चुके, इसहाक डार साहब नाकाम हो गए, अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो IMF का वफ्द होगा वो इसहाक डार साहब इनकी मौजूदगी में उनके साथ बातचीत करेंगे और फिर उनकी शराइत मानना पड़ेंगी। फिर आपको पैसे मिलेंगे, फिर वही पैसे और सूद साथ में लगा के उनको अदायगी करनी पड़ेगी, और प्लस कुछ अपने ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, और आवाम तैयार रहे कि उनको मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और ये मुल्क एक तरफ महंगाई की चक्की में पिस रहा है, दूसरी जानिब 100 लोगों के इस्तीफ़े हो गए। ये हुक्मरान इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी जितने भी हैं, इनको अपनी सियासत की पड़ी है, मुल्क और कौम की इसमें किसी को फ़िक्र नहीं। फ़िक्र होती तो ना कोई इलेक्शन का कहता, ना कोई इलेक्शन करवाने से इनकारी होता। जबकि ये मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए बेहतरी का काम करते, यहाँ हर कोई सोचता है कि मज़ीद महंगाई हो जाए, ये लोग एक्सपोज हों, आवाम इनसे मुतनफ़र हो जाएं, मुझे आवाम वोट दें और मैं फिर आगे हुकूमत में आऊँ और मैं मैशत को ठीक करूँ। हमेशा इक़्तिदार में आने वाले कहते हैं हमें ख़जाना खाली मिला, हमेशा वो कहते हैं कि ये माजी की हुक्मरानों की गलतियाँ हैं, जबकि देखा जाए तो माजी में भी वही हुक्मरान रह चुके होते हैं। हर बंदे को, हर पार्टी को, हर सियासतदान को, हर वज़ीर आज़म को 5 साल का वक्त चाहिए, और जब 5 साल गुजर जाते तो कहता है काश मुझे और 5 साल मिल जाएं, मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। लेकिन वो अपनी तकदीर बदलते हैं, वो IMF से कर्जा लेते हुए अपने असासे कहीं गिरवी नहीं रखते, वो मुल्क की अमारात, मुल्क की जितनी भी अहम चीज़ें होती हैं उनको गिरवी रख के सारा कुछ करते हैं। याद रखिएगा, जब तक मुल्क से कोई भी सियासतदान मुखलिस नहीं होगा और अवाम अपने हकूक़ और फ़राइज़ का खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, तब तक आपको मुल्क के अंदर बेहतरी किसी सूरत नज़र नहीं आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।